Hello guys, welcome to my YouTube channel which is called World Current Static GK Platform. So today we are going to do the next MCQ quiz, the basic Constitution of India, the basic polity MCQs, which is very important for any type of examination, whether it is state level, whether it is SSC examination or whether it is UPSC examination. So we are starting from the basic questions, just basic. So the basic must be clear to every student. So today we are going to do the next quiz, which is in front of you right now. So let's start. So the first question is, which article in the Indian Constitution is called heart and soul of the Constitution of India? It is said by Dr. B. Ambedkar. These are the four options in front of you. It is very simple question, very basic. You must know the answer of this question. So the चार ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 22, आर्टिकल 32. सोचिए क्या आंसर हो सकता है एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 32. सो डॉक्टर बी अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यही है जिस पे सारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है और ये आर्टिकल लोगों की फंडामेंटल राइट्स को बचाता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, who was the head of the Union Power Committee in the Constituent Assembly? Here are the four options. आपको पता है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काफ़ी कमिटीज़ बनाई थी ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए और उसमें से पूछा गया है कि यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे. So here are the four option and the right answer is Jawaharlal Nehru. And the third question is, which act form the basis of blueprint of the Constitution of India? Here are the four options. And the right answer is Government of India Act 1935. So इसे blueprint of the Constitution of India इसलिए कहा गया है क्योंकि most of our constitution is based on Government of India Act 1935. आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है डिफरेंट कंट्री से, लेकिन मेजॉरिटी जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गए हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फीचर फ्रॉम द विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन? हियर आर द फोर ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज जापान कॉन्स्टिट्यूशन. Next question is, Indian constitution borrowed the preamble from which foreign constitution? Here are the four options and the right answer is preamble हमें बोरो किया था USA कॉन्स्टिट्यूशन से and preamble is called the introduction of our constitution. And next question is, which article of the Constitution of India describe India as a union of state? Here are the four options and the right answer is article 1. Next question is, which article empower the Parliament of India to admit into India or establish a new state? Here are the four options. बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को कि कोई भी बाहरला इलाका जो हमारे देश ने के अंडर आ सकता है उसे एडमिट कर सकता है और न्यू स्टेट भी बना सकता है. आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीड हाउ मेनी मंथ्स अंडर प्रिवेंशन? हियर द फोर ऑप्शन एंड राइट आंसर इज 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के ज़्यादा डिटेंशन एक्सीड नहीं की जा सकती. इसके लिए एक कमेटी होती है, उसकी परमिशन की चाहिए होती है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following article of the fundamental rights provide protection against private individuals? Here are the four option and the right answer is article 15 sub part 2. And the last question, second last question is, which of the following article of the Constitution of India provides for the doctrine of judicial review? Here are the four options. सोचिए क्या हो सकता है and the right answer is article 13. And last question is, who headed the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal areas, excluded areas? Here are the four options and the right answer is सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप क्लिक कर सकते हैं फिनिश पे और यू विल गेट योर आंसर. हियर इज द आंसर. और ये साथ ही आपके साथ एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी ये आंसर क्यों है और आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगा. अगर आपको कोई प्रोविजन नहीं पता है आप किसी साथ पता कर सकते हैं. अगर आप इस टेस्ट को फिजिकली करना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ कि आप इस
इस वेबसाइट पे, जो मेरी वेबसाइट है साइंस मैथ एजुकेशन प्लेटफॉर्म डॉट इन पे जाके डेली MCQ क्यूज पे सेक्शन पे जाके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, एंड यू विल हैव वेरी गुड प्रैक्टिस ऑन डूइंग द MCQs। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट कीजिए कि और किस सेक्शन पे आप MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एंड ओके, वी विल मीट टुमारो। और इस वेबसाइट पे और भी काफ़ी कंटेंट है जो आप देख सकते हैं, और हर रोज़ मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था मैं वीडियो डालूंगा, एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट। आपका थ्योरी का सेक्शन भी करेंगे और MCQ भी होगा, दोनों होगा। And please, at the last, subscribe to my channel and go to this website if you want to learn more, especially about इंडियन पॉलिटी थ्योरी सेक्शन में हम डालेंगे, और उसके बाद करंट अफेयर में डेली MCQs भी हैं, बायोलॉजी भी है, बायोलॉजी के MCQs भी हर रोज़ डाले जाते हैं। एंड ओके, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।